let's start with our concepts. Okay, in our previous session हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने बात करी थी slab rates के बारे में, right? And I told you that there are two types of tax regimes. One is your old tax regime and second is your new tax regime. अब ओल्ड टैक्स regime में हमने कुछ स्लैब पढ़ा था कि ठीक है 0 से लेकर 2,50,000 तक 0% टैक्स होता है, ठीक है। 250 से लेकर 250 से लेकर 5 लाख तक अलग टैक्स स्लैब होता है। तो लेट्स रिवाइज व्हाटएवर वी हैव स्टडीड सो फार। 2 मिनट में रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, as I told you that there are two types of tax regimes. One is your old tax regime and second is your new tax regime. In the old tax regime, all the deductions and exemptions are available. Okay. In the old tax regime, all the deductions and exemptions are available. Whereas if I talk about the new tax regime, only and only no deductions and exemptions are available. बस हार्डली एक दो आपको डिडक्शन और एग्जेम्पशन मिल जाती है, उसके अलावा आप न्यू टैक्स regime में कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हो। देन आपका ये क्वेश्चन आना चाहिए, तो फिर मैं एज ए पर्सन न्यू टैक्स regime सेलेक्ट क्यों करूं? जब मैं कोई डिडक्शन नहीं ले सकता, जब मैं कोई एग्जेम्पशन नहीं ले सकता, तो देयर मस्ट बी सम रीजन ना। एंड लेट मी टेल यू, अभी जो 23-24 की रिटर्न फाइल हुई ना, उसमें मिनिमम 60 to 70% लोगों ने न्यू टैक्स regime को ही सेलेक्ट करा, इवन इफ सारी कोई डिडक्शन या एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं थी। तो दैट मीन्स कुछ तो बेनिफिट है न्यू टैक्स regime में, ठीक है। Today I will tell you why this new tax regime also was introduced. There must be some reason, right? So we will understand about the reason as well. Okay. Now, when it comes to the old tax regime, tax rates in case of an individual, tax rates in case of an individual under the old tax regime, क्या-क्या tax rate apply होते हैं? This discussion is divided into three categories based on the individual's age. ठीक है? सामने वाले की एज के अनुसार हम लोग ये जो है स्लैब रेट को डिफाइन करते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी एज लेस देन 60 इयर्स है, तो 0 से लेकर 2.5 लाख तक 0%, 2.5 टू 5 लाख तक 5%, 5 टू 10 तक 20% एंड अबव 10 तक 30% आपका जो है स्लैब रेट पर टैक्स लगेगा। सो विद दिस आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू वन क्वेश्चन सो दैट यू ऑल कैन रिवाइज कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद अदर concepts. Okay. So I request every one of you to please calculate tax on total income of say 27,50,000. Okay. जल्दी से एक बार कैलकुलेट करके बता दो और मुझे बताओ। और इंडिविजुअल का एज है लेट्स से 35 इयर्स। 6,63,000। हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट कर दिया था आप लोगों ने 4% का। Yes, ma'am. Everyone is getting the same answer, 6,63,000. Let's wait for 2 minutes more. Everyone is getting 663. Raj.
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो 637,500 का 4% कितना आएगा? हम्म, ये आएगा 25,500, 25,500, 6,63,000। आई होप ये सबको क्लियर है, राइट? चलो परफेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर इनकम, जहां पे मेरा टोटल इनकम है, लेट्स से 7,80,000 रुपीज। प्लीज टेल मी इसका टैक्स कितना आएगा? We have received two answers, Akshay and Akash, Devanshi, Vishali, Jitendra. So see, everyone is getting the same answer. So 0 to 2,50,000, it is 0%. 2,50,000 to 5 lakh, it is 5%. 5 lakh to, see, the next slab is up to 10 lakh, right? But my income is up to 7,80,000 only. So it is 20%. Now I need to reduce the same. It is 2,50,000, 2,50,000, and 2,80,000. So it is 0, 12,500, 56,000. 508 plus health and education cess, which is at the rate of 4%. So 4% of 68,500 would be 2,740. Okay. So it would be after the 7,1,240. Everyone is getting the same answer. So that's perfect. Okay. Correct, Suman, Vijay, Rama, Shivan, Shublam, Priyanka, Karishma, Govind, Sumit, Jitendra, Deepa. Everyone is getting the same answer. Vishali, Jitendra, everyone. Okay. चलो, यहाँ तक तो समझ में आया। फिर कल मैंने एक जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने एक रिबेट के बारे में भी बात करी थी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। डू यू रिमेम्बर? तो एक और टोटल इनकम ले लेते हैं। लेट्स से टोटल इनकम इज 4,20,000 रुपए। अब इसका मुझे बताओ टैक्स कितना निकलेगा? 0. 0? Yes. नील टैक्स रेट। टैक्स रेट तो इसको अक्षय नील टैक्स रेट नहीं बोलेंगे, वैसे नील टैक्स होगा, जीरो टैक्स होगा। रेट नहीं निकाले ना हम यहाँ पे, जीरो टैक्स है। अमाउंट जीरो है, अमाउंट नील है। ठीक है। अब किसी ने ये सोचा कि नील तो हो गया, अब किसी ने ये सोचा कि गवर्नमेंट डायरेक्ट 5 लाख तक क्यों नहीं इसको एग्जेप्ट कर देती, 5 लाख से ऊपर ही टैक्स लगाए, ये रिबेट वाला चक्कर क्यों डाल दिया? किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया? जब 5 लाख तक मुझे कोई टैक्स ही नहीं देना, तो ये बोले डायरेक्ट 5,01,000 से टैक्स पे करना स्टार्ट करो। डू यू एग्री? There must be one question that comes into your mind, that why the government is introducing this 87A rebate when all they can do is exempt your income till 5 lakh rupees. So इसका क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा है। केबीसी किस किसने देखा है यहाँ पे? केबीसी, बिग बॉस, और क्या आपका क्या चलता है, रोडीज वगैरह। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन ऑल दीज शोज, राइट? और नहीं भी देखा हो तो एटलीस्ट पता होगा इसके बारे में, राइट, कि ये शोज है। और इसमें जो कंटेस्टेंट को पैसा मिलता है, उसपे जो टैक्स लगता है वो लगता है डायरेक्ट 30% का। 30% इज योर टैक्स रेट। सो दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, that suppose there's this individual, his name is, let's say, Jitendra only, and he goes to KBC, कौन बनेगा करोड़पति, and he earns, let's say, 4 lakh rupees as his income, game say. Now what will happen in these type of income? These are known as a special rate of income. Okay, the tax amount would be 30%. So the tax is 1,20,000. Okay, tax is 1,20,000. Can you claim the rebate? The answer is yes.
And if you remember, the rebate was 12,500 or the tax amount, whichever is lower, right? So lower is 12,500, 12,500. So in this case, the net tax liability which I need to pay is 1,20,000 minus 12,500. It is 1,07,500. Is it clear to every one of you? समझ में आया? यस मैम। कुछ इनकम होती है जो 30% के टैक्स पे जाती है. लॉटरी, suppose if you have if you won a lottery, then in that case lottery income पे भी 30% का tax rate है. That is the reason the government is not directly exempting your income till 5 lakhs. They have just routed it through 87A rebate. ठीक है? I hope it is clear to every one of you. Now let's talk about the most important topic. Let's talk about the slab rate under the new tax regime. But before the slab rates under the new tax regime, let me share one more concept. So if there's an individual, currently we have covered this individual whose age is less than 60 years, right? Let's talk about an individual whose age is 60 or more. ठीक है? हो सकता है आपके पापा ही हो, या हो सकता है आपके नाना जी, ग्रैंडफादर, कुछ भी हो. जिनकी एज 60 से 79 तक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? सीनियर सिटीजन कहलाते हैं. मतलब वो एक तो रेजिडेंट होने चाहिए, एंड एज 60 से 79, तो वो हमारे सीनियर सिटीजन कहलाते हैं. अब ऑब्वियसली जब कोई सीनियर सिटीजन है तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी थोड़ा सा कम तो होगी. डू यू एग्री? तो थोड़ा सा तो बेनिफिट उसको मिलना चाहिए. तो बेनिफिट के नाम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो 0 से लेकर, पहले 2.5 थी, इसको बढ़ा के 0 से लेकर 3 लाख कर दिया. तो 0 से लेकर 3 लाख तक 0%, 3 to 5 it is 5%, 5 to 10 it is 20%, and above 10 it is 30%. So the slab rate are same. The way we are going to calculate the same is also we is also same. बस जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो हमारी बढ़ाकर 2.5 लाख से 2.5 लाख से 3 लाख कर दी गई है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन. हु आर माई सुपर सीनियर सिटीजन? अगर कोई रेजिडेंट है, अगर कोई रेजिडेंट है जिसकी एज 80 या उससे ज्यादा है, अगर कोई रेजिडेंट है जिसकी एज 80 या उससे ज्यादा है, सो वी कॉल हिम एज सुपर सीनियर सिटीजन. अब सुपर सीनियर सिटीजन में जो स्लैब है वो 3 लाख से बढ़कर हो गया है 5 लाख तक. मतलब कोई 80 साल की उम्र में भी देखो एक टैक्स पे कर रहा है, तो थोड़ा सा तो बेनिफिट बनता है देना गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? सो 0 से लेकर 5 लाख तक 0%, 5 से लेकर 10 लाख तक 20%, and above 10 lakh तक it is 30%. Is this clear to every one of you? यस मैम। But what about the non-resident? आपने बोला ये रेजिडेंट है, रेजिडेंट है. रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? घर का बच्चा, एक तरीके से, राइट? Do you think as an Indian government it's easy for me to say ask Donald Trump to pay taxes in India? So that means there must be some criteria to define how we are going to pay taxes in India. And who needs to pay taxes in India? He should be a he should be a resident. If he's a non-resident, then obviously he will fall into this category only. I don't know how many of you are aware, but suppose आप किसी person को जानते हो जो कनाडा रहकर आया है, and if he is visiting India, and if he comes on a visit to India, then उस person का जो main मोटिव होता है वो कभी आप सुनोगे कि 180 दिन ही इंडिया में रहने हैं, अगर आपने ऐसे कोई प्रैक्टिकल देखा है तो. ठीक है? कि मुझे कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज ही इंडिया में रहना है ताकि मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज ना हो. सो वो क्या है क्या नहीं, ऑब्वियसली वो हम अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे. बट आई होप फ्रॉम दिस इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू दैट when it comes to a non-resident or an individual whose age is less than 60 years, then this is the slab rate which we are going to follow. Who are my senior citizen?
when there's this resident and whose age is 60 years or more, but till 79, then they are my senior citizen. And who are my super senior citizen? When they are resident and their age is 80 years or more, then they are my super senior citizen. ठीक है? सो अगर आप कभी न्यूज चैनल पे भी देखोगे कि सीनियर सिटीजन को ये मिला, तो हु आर माई सीनियर सिटीजन? रेजिडेंट होना चाहिए, 60 की एज होनी चाहिए. इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? यस मैम. ओके. एनीवन एल्स? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज टेल मी. नहीं समझ में आ रहा हो बिकॉज हिंदी चल रही है, इंग्लिश में एक्सप्लेन करना हो तो डू लेट मी नो. If somebody is not able to understand, then please do let me know. I can explain the same in English as well. So I'm assuming that you all have understood the concept क्योंकि मैं पढ़ाती इतना अच्छा हूँ. मेरा एक क्वेश्चन है मैम, यहाँ पे सीनियर सिटीजन में 4% वाला जो है वो भी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? हाँ, सब भी होगा. इसमें भी ये सब कैलकुलेट करने के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड हो जाएगा. इसमें भी ये कैलकुलेट करने के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड हो जाएगा. ठीक है? और इसमें तो हमने देख ही लिया. इनफैक्ट न्यू टेक्स्ट रजीम में भी जब कैलकुलेट करेंगे उसमें भी वो ऐड हो जाएगा. ठीक है मैम, एक क्वेश्चन है. हाँ जी, हाँ जी. सरचार्ज कब लगता है? अब मैं सरचार्ज पे ही आ रही थी. सरचार्ज आपका तब लगता है जब आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो. रेट क्या होता है मैम सरचार्ज का? किसी को बता रही हूँ. देखो, नाउ आफ्टर लाइक कैलकुलेटिंग दिस your tax on this as per the slab rates given, if an assessee have their total income exceeding 50 lakh rupees, अगर किसी बंदे की 50 लाख से ज्यादा इनकम है, तो in that case surcharge is also applicable. Surcharge rate is 50 lakhs to 1 crore, it is 10%. 1 crore to 2 crore, it is 15%. 2 to 5 crore, it is 25%. 5 to 10, it is 37%. And exceeding 10 crore, it is 30. मतलब above 5 crore, it is 37% only. Now, what does that mean? Let's solve one question. Suppose there is an individual. His total income is 62 lakhs rupees. So how we are going to calculate taxes on this income since it is above 50 lakh? First, apply the slab rate as it is. 0 to 2.5 lakh, 0%. 2,50,000 to 5 lakh, 5%. 5 lakh to 10 lakh, 20%. And 10 lakh to 62 lakh, 30%. Okay. Now, what happens when it comes to the solving these type of slab rates? It can also happen that you can minus the same. अपने माइंड में ही आप कर सकते हो, राइट? बैकग्राउंड वर्किंग के रूप में. सो 0 से लेकर 2.5 लाख, ये 0 आएगा, ये 12,500 आएगा, ये 1 लाख आएगा, और ये 52 लाख का 30%. 30,68,000. 15,60,000. ठीक है. So 15,60,000 plus 1,12,500. It is 16,72,500. Now, since income is above 50 lakhs, so surcharge is applicable. Okay. Now please tell me according to you कौन सा सरचार्ज रेट लगना चाहिए? 10%. 15 to 1 crore. बस मेरी इनकम यहाँ पे फॉल कर रही है. अगर मेरी इनकम 1.5 करोड़ होती तो कितना लगता? 15%. यस. तो ये इनकम के बेस पे लगता है, तो इसमें कोई स्लैब नहीं चलता. पता चला इसमें भी स्लैब लगा दो. डिपेंडिंग अपॉन योर टोटल इनकम आप इसको कंसिडर कर लोगे.
ठीक है। मैम अगर 50 लाख मान लो 50 लाख 50 हजार रुपए है तो भी उसको 10% सेट चार्ज लग जाएगा फिर तो। सरचार्ज लगेगा, बट एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है, वो भी आएगा। बट अभी मैं वो सब इंट्रोड्यूस करूंगी ना आज के सेशन में, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा। फिर हर ओके चीज लगेगी, इनकम टैक्स तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, ओके। इसलिए मैं एकदम से वो वाला टॉपिक। सरचार्ज अभी किसी ने पूछा क्या होता है। सरचार्ज होता है, ये मेरा टैक्स है, राइट। सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स। तो सरचार्ज लगेगा हमारा एट द रेट ऑफ 10%, विच इज 167250। ठीक है, नाउ इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 5079 1839750। एंड देन ये जो वैल्यू आई, उस पे आप ऐड करोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, विच इज एट द रेट ऑफ 4%। ओके, तो 1839750, 4% इज 73590। क्या आ जाएगा? 1913340। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो यस अगर मेरी इनकम 50 लाख रुपीज से ऊपर है, इफ माई इनकम इज एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, देन इन दैट केस first calculate the tax as it is as per the slab rate, then add the surcharge based on the like जो इनकम का क्राइटेरिया उसमें जिसमें आप फॉल कर रहे हो उसके हिसाब से सरचार्ज रेट लगाओ, दोनों को टोटल करो, उस पे जाके आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जाएगा। इज दैट क्लियर? यस I मैम। have a question. Yes, somebody wants to ask some question? Yes, मैम। मैम ये सरचार्ज हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, इसका बेसिकली यूज़ क्या है? जैसे एजुकेशन एंड हेल्थ केयर का वी नो कि ये 4% है, पर्टिकुलरली एजुकेशन और के लिए यूज़ होगा, ये गवर्नमेंट का प्रोविज़न बना हुआ है। सरचार्ज में जो अमाउंट आ रहा है इसका भी प्रोविज़न बनाया होगा गवर्नमेंट ने कि हम अमाउंट इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे। तो व्हाट नहीं इज़ नहीं द नहीं, यूज़ ऑफ दिस? इसका कोई पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर होता तो उसमें प्रॉपर मेंशन होता कि इस चीज के लिए उस चीज के लिए, बट इसमें नहीं है। सरचार्ज क्यों लगता है? सरचार्ज इसलिए लगता है क्योंकि ये जो बड़ी इनकम वाले लोग हैं उनसे थोड़ा सा और टैक्स ले लिया जाए। सिंपल। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, मेरे पास पैसा आ रहा है तो मुझे कोई लिमिट तो डिफाइन करनी पड़ेगी तो मैम कि अगर फ्यूचर में और पैसा चाहिए होगा तो और किसी तरह का सरचार्ज या कुछ ऐसा लगा देंगे वो तो फिर। हाँ वो लगा सकते हैं। बट लेट मी टेल यू, जैसे जैसे इंडिया जैसे जैसे डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री बनती जाती है ना, टैक्स रेट थोड़े से और फ्लैट होते जाते हैं। अगर मैं यूएस टैक्सेशन के बारे में बात करूं, तो आप कितना टैक्स पे करें वहां पे? 10%, 20%। तो हम्म। और अभी अगर आप डोनाल्ड ट्रम्प की न्यूज सुनोगे तो उसने क्या बोला कि इनकम टैक्स हम चार्ज ही नहीं करेंगे। वहां पे फेडरल टैक्स बोलते हैं, वहां पे इनकम टैक्स नहीं बोलते। यूएस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जैसे जैसे डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहां पे टैक्सेशन कहीं ना कहीं कम होता जाता है, बट वहां पे फिर क्या चीज ज्यादा होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, तो मेरी फैमिली में से कुछ लोग यूके रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या ज्यादा है? जैसे वाटर का बिल हो गया, पानी का बिल आ गया, या जैसे घर, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत महंगी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी है तो उससे जो एसोसिएटेड टैक्स है, जैसे गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वो भी काफी अच्छा खासा चला जाता है। तो वहां से वो लोग वो रिकवर करते हैं, बिकॉज वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जेन्युइनली बहुत हाई है। ठीक है, बट इनकम टैक्स एज सच आपका वो फ्लैट कर देते हैं। ठीक है, प्लस यूएस में तो एक ऐसा भी है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, एक सिंगल रिटर्न, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट रिटर्न। इंडिया में ऐसा प्रोविजन नहीं है, अदरवाइज उधर है यूएस में, जॉइंट रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं वहां पे हस्बैंड और वाइफ मिलकर। ठीक है, सो नाउ आई एम गिविंग वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। आप इसको सॉल्व करो एक बार, एंड देन वी विल कम टू दिस न्यू टैक्स regime, एंड लेट मी टेल यू, यू विल एंजॉय द न्यू टैक्स regime वाला जो पार्ट है ना, बिकॉज यू विल फाइंड that if you're going to file ITRs etc for your clients, you will find कि सब लोग न्यू टैक्स regime में ही जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा, तो उसमें और मजा आएगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 2 करोड़
20 लाख इज योर इनकम, और इसमें जो आपका सरचार्ज है, मुझे बताओ कितना लगेगा आपके हिसाब से? 25%। 15%। 2 करोड़ 20 लाख है, 25% है ना? तो चलो, आपको सरचार्ज रेट भी पता चल गया है। अब आप मुझे बताओ कैसे करोगे? Jitendra, I think your answer is different. Rest of the students are getting different answers. Add PD surcharge. I hope you all have added the surcharge as well. एट थ्री सिक्स टू फाइव जीरो सबका यही आ रहा है? यस मैम। इसका 4% इज 32062। 8333250। मेरा 8333250 आ रहा है, मैं कुछ गड़बड़ करा है क्या? 15625। अभी ऐड करने में मिस्टेक्स है। यस, 833250। ठीक है, everyone is getting the same answer, is that clear? Yes, ma'am. Clear. Okay, perfect. नाउ चलो बात करते हैं न्यू टेक्स्ट regime की, बिकॉज ये तो आपको आ गया। ठीक है, देखो 23 24 तो निकल गया है, तो इस वाली साइड को तो भूल जाओ। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस साइड ओनली विच इज एप्लीकेबल फॉर 24 25। डू यू एग्री 24 25 को मैं असेसमेंट ईयर 25 26 बोलूंगी? ये तो हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया था, राइट? दिस न्यू टेक्स्ट regime का जो स्लैब है, इट इज एप्लीकेबल, एंड लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो। ओके, दिस न्यू टेक्स्ट regime का जो स्लैब है, इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सो ये होता क्या है, कैसे करते हैं, क्या समझ में आता है, इसको बाद में करेंगे, पहले इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, the slab rate under the new tax regime is applicable to individual HUF and the rest of the few other parties as well. अंशु, जैसे मैंने बोला, डेवलपमेंट नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए टैक्स स्लैब हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज फिर बाद में, इसका मतलब ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो बाद में जो है इनकम टैक्स से अपना रिवेन्यू नहीं करते, वो कोशिश करती है कि एक्सपोर्ट वगैरह से करे। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जापान आपके हिसाब से डेवलप्ड कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है? डेवलप्ड कंट्री। डेवलप है। कैन यू सी कि जापान का कन्वर्जन रेट क्या है? 1 INR इज इक्वल्स टू, अगर आप 1 INR दोगे तो आपको जापानीज येन जो है वो करीब 1.18 मिलेगा। तो दैट मीन्स जापान की करेंसी इंडिया की करेंसी से भी लोअर है। एंड इसका रीजन, अब आप बोलोगे डेवलप्ड कंट्री है, ये तो लोअर तो होना नहीं चाहिए,
इसका रीजन सिंपल है कि जब कोई कंट्री डेवलप्ड हो जाती है, जब उसको दिख जाता है, मतलब एक होता है ना, जब अपना पेट भरा हुआ होता है तो फिर आप अपने ही लोगों से पैसा नहीं लेते, आप बाद में बाहर बांटना चालू कर देते हो, राइट? सो जापान की अगर इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें, सो दे आर मोर इनटू एक्सपोर्ट्स। अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मुझे अपनी करेंसी सबसे कम रखनी पड़ेगी, एंड ये उनका इकोनॉमिक डिसीजन है या पॉलिसी है कि अपनी करेंसी को उनको बाकी करेंसी से कम रखनी है, ठीक है? सो व्हेन आई से कि स्लैब रेट फ्लैट हो जाएगा तो मतलब डेवलप्ड कंट्री में मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मेरा कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इतना सा है कि जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती जाएगी, आप देखोगे कि जो उसके खुद के पर्सन है, मतलब जो खुद के जो रेजिडेंट्स है, उनसे टैक्स रेट कम लिया जाता है, ठीक है? और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। हो सकता है अभी आपको रिलेट ना हो, आपको लगे कि पता नहीं क्या फालतू की बकवास कर रही हूँ, ठीक है? बट दिस इज विद माय एक्सपीरियंस ओनली बिकॉज आई एम इनटू दिस इंटरनेशनल टैक्सेशन फील्ड, ठीक है? सो कंसिडरिंग द रेट्स व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट कि यूएस का ये है, यूके का ये है, वहां पे ऐसे होता है वैसे होता है, वो एक्सपीरियंस से आया है, व्हिच इज ऑफ मोर देन 10 इयर्स नाउ, ठीक है? अंशु, क्लियर हुआ क्वेरी? यस मैम, क्लियर हो गया। थैंक ठीक यू। है, या अब बात करते हैं न्यू टैक्स regime के अंदर कि स्लैब रेट क्या क्या लगेगा, ठीक है? पहले क्या था, 23-24 में जो स्लैब रेट था वो ये था, अप टू 3 लाख 0%, 3 to 6 lakh 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20% एंड अबव 15 to 30%। तो ये तो था 23-24 का। अब आप ये बिलीव नहीं करोगे, जो न्यू टैक्स regime है उसका स्लैब रेट हर 3 साल में 3 बार चेंज हो चुका है। जो अभी ये स्लैब रेट हम फाइनेंशियल ईयर लाइक करंट ईयर के लिए पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से चेंज है, ठीक है? तो इस साल मतलब फाइनेंशियल 24-25 का जो स्लैब रेट है वो ये है न्यू टैक्स regime के अंदर। 0 to 3 lakh it is 0%, 3 lakh to 7 lakh it is 5%, 7 to 10 it is 10%, 10 to 12 it is 15%, 12 to 15 it is 20% and above 15 it is 30%, ठीक है? इफ यू आस्क मी कि किस टाइप से ये डिफरेंस बनाया गया है, क्या बनाया गया है स्लैब्स में, तो लेट मी टेल यू, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके? So up to 3 lakh it is 0% of tax, 3 to 7 lakh it is 5% of tax, 7 to 10 lakh it is 10% of tax, 10 lakh to 12 lakh it is 15% and 12 to 15 it is 20% and above 15 it is 50%, ठीक है? क्या न्यू टैक्स regime में जो मेरा इंडिविजुअल है उसमें क्या एज वाइज कोई स्लैब है? द आंसर इज नो, एज वाइज आपका कोई स्लैब रेट इसमें नहीं है। तो एक बार ना इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन आई विल गिव यू क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एज वेल, ओके? लेट्स टॉक अबाउट न्यू टैक्स regime स्लैब रेट applicable for financial year 24-25। तो मैंने क्या बोला, 0 से लेकर 3 lakhs तक 0% है, 3 to 7 lakhs तक 5% है, 7 to 10 lakhs तक 10% है, 10 to 12 lakhs तक 15% है, 12 to 15 lakhs तक 20% है और अबव 15 lakhs तक 30% है, ठीक है? तो अगर मैं अपना बात करूं, क्योंकि एज ए टीचर यू हैव टू फाइंड सम ट्रिक्स, राइट? तो मैंने तो उसको ऐसे याद किया था जैसे रिवर्स काउंटिंग होती है ना, रिवर्स काउंटिंग 4 लाख 3 लाख 2 लाख, तो कैन यू सी द डिफरेंस है, यहाँ तो 3 लाख तक है, ये तो चलो याद रहता है मोस्टली। 3 to 7 लाख ये जो डिफरेंस है वो 4 लाख का है, 7 to 10 ये है 3 लाख का, 10 to 12 ये है 2 लाख का। तो 4 3 2 बेसिकली इस टाइप से मैंने डिफरेंस को याद कर रखा है, ठीक है? 12 to 15 अगेन 3 लाख आ गया, ये मैंने याद कर रखा है और ये तो अबव 15 है ही, ठीक है?
सेकेंड चीज, जो टैक्स रेट है वो 0.5% आप ऐड करते जाओ विद एवरी इंक्रीमेंट, और उसको आप ऐड करते जाओ 15 लाख तक, ठीक है, 15 लाख तक उसको ऐड करते जाओ, और जैसे ही 20% आएगा उसके डायरेक्ट आप स्किप करके 30 पर पहुंच जाओ, बिकॉज देयर इज नो स्लैब ऑफ 25% टैक्स रेट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So for the financial year 24-25, this is your slab rate, as you can see this in your screen as well. Up to 3 lakhs, it is 0% of tax. 3 to 7 lakhs, it is 5% of tax. 7 to 10, it is 10% of tax. 10 to 12, it is 15% of tax. 12 to 15, it is 20% of tax. And above 15, it is 30% of tax. And I do understand that this is quite difficult for us to remember. I mean, all these are slab rates. And let me tell you, the slab rate which is applicable under the new tax regime for financial year 25-26 is also different. Okay, so now in this case you can remember the difference between the slab rates, the higher and the lower limits, and with every increment of 5%, with every increment of 5% in the tax rate till 20%, you will find that the difference between the higher and the upper and the lower limit is 432, like this, कि 4-3-2 इस तरीके से आपको याद भी रहता है, और 5% से आप इंक्रीज करते रहो. दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस स्लैब रेट which is applicable for the financial year 24-25. Is that clear to every one of you? What about the age wise slab rate? Age wise slab rate कुछ है क्या? The answer is no. न्यू टैक्स regime में कोई age wise slab rate नहीं है, ठीक है. So let's say I'm giving all of you one question. My taxable income is 16 lakh. The way we are going to solve this question is same जैसे हम करते आए हैं, ठीक है. हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स वगैरह सब ऐड होगा. तो एक बार इसको बताओ कितना आएगा इस स्लैब के हिसाब से. एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर. तो 0 to 3 लाख ये 0 आएगा, ये आएगा आपका 20,000 रुपए, क्या आएगा आपका 30,000 रुपए. दिस इज ऑल्सो 30,000 रुपीज. दिस इज 60,000 रुपीज. And this is 30,000 rupees, right? So it would be 90, 150, 1,70,000 plus health and education cess, which is at the rate of 4%, which is 6,800. So it would be 176,800. समझ में आया? Yes, ma'am. 176,800. Yes, ma'am. ठीक है. This is the slab rate which is applicable for financial year 24-25, and let me tell you, it is not same when it comes to the financial year 25-26. ठीक है. तो किसने जो न्यूज सुनी थी 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है? Were you active like looking into the news when the budget announced recently? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? तो एक बार वो 12 लाख वाला देखेंगे क्या है वो एक्चुअली में. जी मैम. चलो वो देखते हैं. Yes, ma'am. Please. ठीक है. अब मैं आती हूँ दूसरी पीपीटी पे जहाँ पे एक्चुअल में मैंने 12 लाख वाला मेंशन किया है. ठीक है. ये मैंने बनाया था फॉर इंडिविजुअल्स कि क्या क्या चेंजेस आए हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दी स्लैब रेट्स ओनली. What are the changes which are made for individual assessees for the financial year 24-25 and the 25-26? As we are aware, just give me a second. Yes, as we are aware that there are two types of tax regimes. One is your old tax regime and second is your new tax regime. And new tax regime is your default tax regime. Okay. As per the latest budget, there are no changes made under the old tax regime. Old tax regime में कोई changes नहीं किए गए. जो हमने पढ़ा as it is ऐसे ही है. ठीक है. तो ये देखो मैंने थोड़ा सा पीपीटी को रिवाइज भी कर दिया था. ये मैंने क्या बोला था? इंडिविजुअल एज लेस देन 60 इयर्स, चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, वो ये लोग फॉलो करेंगे. सीनियर सिटीजन रेजिडेंट ओनली एंड सुपर सीनियर सिटीजन इज ऑल्सो रेजिडेंट ओनली. इज दैट क्लियर? स्लैब रेट इज सेम व्हिच वी हैव स्टडीड सो फार. फिर हमने सरचार्ज रेट भी देखा कि ये तो मेरा स्लैब रेट हो गया और सरचार्ज लगते हैं 52 लाख टू 1 करोड़ 10% का, 1 to 2 15%, 2 to 5 25% एंड अबव 5 इट इज 37%. तो मैक्सिमम सरचार्ज कितना है मेरा? 37%, राइट?
फिर रिबेट के बारे में पढ़ा हमने कि 12,500 तक मिलेगा इफ इनकम इज अप टू 5 लाख। अब ध्यान से देखना, ये जहाँ पे मेरा टैक्स का स्लैब रेट अंडर द न्यू टैक्स रेजिम इज डिफरेंट। ओके, सो 24-25 के लिए ये एप्लीकेबल है, 25-26 के लिए ये एप्लीकेबल है। 24-25 तो जस्ट अभी पढ़ा है, up to 3 lakhs 0% of tax, 3 to 7 lakh it is 5% of tax, 7 to 10 it is 10% of tax, 10 to 12 it is 15%, 12 to 15 it is 20%, and above 15 it is 30%, right? What about this 25-26? You must have heard about this 12 lakh 12 lakh 12 lakh, बहुत सुना होगा अभी recently। ये है आपका 12 lakh वाला लिमिट। स्लैब रेट अंडर द न्यू टैक्स regime is changed now, up to 4 lakh it is 0%, 4 to 8 it is 5%, 8 to 12 it is 10%, 12 to 16 it is 15%, 16 to 20 it is 20%, 20 to 24 it is 25%, and above 24 it is 30%। क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे तो आपने करा दिया, ये कैसे याद रखे, इतने 3 स्लैब हो गए। कैन आई से विद एवरी इंक्रीमेंट ऑफ 4 लाख रुपीज, देखो कितना आ रहा है, 4 8 8 12, 4 का ही डिफरेंस है, 12 से 16, 4 का डिफरेंस है, 16 से 20, 4 का डिफरेंस है, 20 से 24, 4 का डिफरेंस है, अबव 24, ठीक है। सो कैन यू से इट लाइक दिस, with every increment of 4 lakh rupees, with every increment of 4 lakh rupees, this is tax increment of 5%। जैसे जैसे आप 4 लाख ऐड करते जाओगे, टैक्स भी आपका 5-5% से इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे मैंने पहले 0 से 4 लाख पे गया, तो पहले मैं 0% मेरा बेस बना, फिर मैं 4 से 8 पे गया तो टैक्स रेट 5% हो गया, 8 से 12 पे गया तो 10 हो गया, 12 से 16 पे गया तो 15 हो गया, 16 से 20 पे गया तो 20 हो गया, 20 से 24 पे गया तो इसमें 25 भी है, और फिर अबव 24 इसमें 3 भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, ये स्लैब तो समझ में आया, बट ये 12 लाख क्या था, ये तो आपने बताया नहीं। तो रिबेट है ना, रिबेट अंडर न्यू टैक्स रेजिम जो मिलती है, जो वहां पे 5 लाख तक की है, 24-25 के लिए तो 7 लाख तक अवेलेबल है, और 25-26 नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स 12 लाख तक अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन 24-25 में, 24-25 में कोई पर्सन अगर इनकम अर्न कर रहा है से 7 लाख रुपीज तक, तो उसको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। वहीं नेक्स्ट ईयर अगर उसकी इनकम हो जाती है 12 लाख रुपए तक, तो भी उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 7 लाख और 12 लाख आपने कभी सुना भी होगा न्यूज पे, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिबेट विच इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, ये जो रिबेट है आपको उस पे नहीं मिलती, मतलब जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है। तो अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो उस पे जो टैक्स लगता है वो 15%, 20% ऐसे लगता है। तो अगर आप उस पे लाइक वो वैसी इनकम अर्न कर रहे हो शेयर ट्रेडिंग वाली, तो इवन इन दैट केस उस पे रिबेट अवेलेबल नहीं है। तो बाकी इनकम में आपको रिबेट मिल जाएगा, बट स्पेशल रेट वाले पे तो पे करना पड़ेगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो ऑब्वियसली हम एग्जांपल से ही समझेंगे। ये समझ में आया सबको? यस मैम। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताओ। कैजुअल इनकम से अक्षय आपका क्या मतलब है? हेलो यस अक्षय। हाँ जी मैम, कैजुअल इनकम जैसे अभी आपने पढ़ाया दैट वी अर्नड ऑन कैजुअल बेसिस, लाइक केबीसी में हम लोगों ने पैसे जीते हैं या लॉटरी विनिंग्स करी है, सो इट इज़ अर्न ऑन कैजुअल बेसिस कि कभी कभी जो है ये इनकम हमें अर्नड होती है, हमने यहाँ पे अपने डेली बेसिस पे एफर्ट्स नहीं लगाए। तो इस केस में भी रिबेट जो है हमें अवेलेबल नहीं होगी अगर स्पेशल रेट ऑफ इनकम सारी एक्सक्लूड करनी है। ओके। कोई और क्वेश्चन किसी का? मैम एनआर के केस में रिबेट तो है ना 87A के अंदर? नॉन रेजिडेंट के केस में है, लेकिन ओल्ड रिजिम में, ओल्ड रिजिम में है। बट एक बार मैं आपको इसको और थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे, सो डोंट वरी। ओके। एक्ट की लैंग्वेज मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो, एक्ट की लैंग्वेज होती है ऐसी, वेरी डिफिकल्ट टू रीड। क्वेश्चन जो आपने पूछा था, नॉन रेजिडेंट को भी मिलता है क्या रिबेट? नहीं मिलता। ओके। एन असेसी बीइंग एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, सिर्फ इंडिविजुअल रेजिडेंट को मिलेगा। इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। तो व्हाट अबाउट एचयूएफ एक्सेट्रा, उनको भी नहीं मिलता। इट इज ओनली अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। Who
whose total income does not exceed 500,000 rupees. 5 लाख भी उन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा, उन्होंने 500,000 कर दिया उसको. ठीक है. So act की language, if you will read, it's very difficult until unless you are actually interested in knowing about the Bayer Act language, then that would be a different scenario. But yes, अगर आप इसको पढ़ोगे खुद से भी, so you will find कि क्या ही लिखा है, एकदम से समझ में नहीं आता. मुझे भी नहीं आता कभी-कभी तो, स्पेशली जो बहुत टेक्निकल सेक्शंस होते हैं. So इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको ब्रेक डाउन करते हैं चीजों को. समझ में आ रहा है? यस मैम. ठीक है. इनकम टैक्स का वेबसाइट अगर आप लोगों ने नहीं गो थ्रू किया है, तो आई सजेस्ट कि आप इनकम टैक्स का वेबसाइट भी गो थ्रू करें एक बार अपने लिए. खुद को रजिस्टर कर सकते हो इस पे, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे पे करने के लिए टैक्सेस को. और आप लोग बोलोगे मेरी इनकम तो 5 लाख तक ही है, जैसे कोई बोला था 5,10,000 तक है, ठीक है, या 6 लाख तक है, या 7 लाख तक है. Still, whether you should file your ITR, income tax return, the answer is yes. Why? Because it will help you to, like, you know, if you would be applying for say some loan etc., वो आपका प्रोफाइल बनता हुआ चला जाता है. So it's always better to create your income tax profile, because suppose if you decide to visit maybe say outside India, या फिर आपको लोन लेना है, होम लोन लेना है, so then in that case the income tax returns are basically important for you to submit to the embassy or maybe the bank personal. Okay, so I still remember when I was 18 years old and my income was hardly, I used to get 800 rupees का जो ट्यूशन का फीस नहीं होता जो आसपास आप पढ़ा लेते हो गली मोहल्ले में. ठीक है. So I used to get just 800,000 rupees ऐसे ट्यूशन का फीस. तो मतलब मेरे पूरे साल की इनकम कितनी होगी? 12,000 रुपए जो है. उस टाइम पे भी मैं 2 से 3 लाख रुपए ऐसे ट्यूशन फीस डाल के कर दी, क्योंकि टैक्स तो तब भी पे नहीं करना, चाहे 2 लाख डालो चाहे 12,000 डालो. तो इट्स ऑलवेज बेटर फॉर यू टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न. एंड अगर आप इनकम की कैटेगरी में नहीं फॉल करते हो तो भी आप थोड़ा सा बढ़ा के आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो अपना. ठीक है. अभी तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताओ. Ma'am, I do have a question. Actually, we just read about the surcharge. So, Yes. is surcharge applicable on the capital gains and dividends as well, or only the income? Okay. So for the surcharge on capital gain, yes, it is applicable, but it is restricted somewhere till 25%, or you will find about the restriction. But अभी मैंने वो consider नहीं किया है, because अभी मैंने आपको capital gain और बाकी income नहीं कराई है, right? So अगर आप मेरी PPT भी देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है the enhanced surcharge of 25% as a case may be is not levied, or maximum rate of surcharge is 15%, and this is for the long term and short term capital gain only. तो that means जो long term है और जो short term है उस capital gain पे हमारा जो surcharge है वो हम restrict कर देते हैं. ठीक है. और सिर्फ न्यू टैक्स regime में नहीं, ओल्ड में भी. जैसे ओल्ड में हम यहाँ पे enhanced surcharge of 25 और 37% है, उसमें मैक्सिमम रेट होगा 15% का ऑन द कैपिटल गेन्स. वो क्यों है, किस लिए है, वो ऑब्वियसली हम देखेंगे. अच्छा, एक चीज डिस्कस करते हैं. व्हाई डू यू थिंक कि हम ओल्ड टैक्स regime भी है, न्यू टैक्स regime भी है, तो व्हाई डू यू थिंक कि गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स regime इंट्रोड्यूस किया होगा? कुछ तो रीजन होगा न्यू टैक्स regime इंट्रोड्यूस करने का. हाँ जी. यस मैम, जैसे कुछ डिमेरिट्स होंगे, कुछ कमियां होंगी. जैसे लाइक सेम एग्जाम मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था कि 5 लाख पे नो टैक्स है एंड 5,10,000 पे टैक्स जो है वो बनता है. तो एक सिनेरियो ऐसा आ जाता है जहाँ पे इंसान को टैक्स पे करने के लिए लायबिलिटी हो जाए. तो मे बी देयर वाज अ रीजन, वन ऑफ द रीजन रिगार्डिंग इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू टैक्स regime. मैं बताती हूँ इसका रीजन क्या था. क्या लिखा है ओल्ड टैक्स regime में? ऑल डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस आर अवेलेबल, राइट? तो लोग क्या करते थे, फेक प्रूफ बना लेते थे. जैसे हाउस रेंटल अलाउंस, कि रेंट पे नहीं कर रहे बट फिर भी उसका हमें डिडक्शन क्लेम करना है या एग्जेम्पशन क्लेम करना है. ठीक है. आई वर्क एज ए पेरोल कंसल्टेंट फॉर अ वेरी फेमस कंपनी, सो मैं उसका नाम तो नहीं लूंगी, जापानीज कंपनी है. ठीक है. बट जब भी डॉक्यूमेंट आते हैं प्रूफ के लिए कि सबमिट करने के लिए, तो लोग लिटरली, बिलीव नहीं करोगे, अपने फ्रेंड से हेल्थ इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट लिया, उसको फोटोशॉप किया और हमें सबमिट कर दिया. सो देयर वर मेनी पीपल जो इस टाइप की चीजें कर रहे थे.
ठीक है, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट के लिए बहुत अभी बहुत सारे स्कैम्स भी हुए हैं पॉलिटिकल डोनेशन को लेकर, ठीक है, या डोनेशंस को लेकर। तो उस सबको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बोला कि इट्स बेटर कि आप जो है बेसिकली कि आप न्यू टैक्स regime में चले जाओ, जहां पे ना आपकी झंझट आप मेरी झंझट, आपका जितना टैक्स बनता है उतना ही पे कर दो, ठीक है। सेकेंड, न्यू टैक्स regime में शिफ्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, स्लैब रेट बहुत गैप क्रिएट कर दिया टैक्स रेट्स में। तो आप देखोगे अगर टैक्सेबल इनकम ओल्ड टैक्स regime के अंदर से 5,10,000 से 10 लाख है, और टैक्सेबल इनकम न्यू टैक्स regime के अंदर भी 10 लाख है, तो 10 लाख रुपए जो न्यू टैक्स regime का टैक्स निकलेगा वो कम निकलेगा, ठीक है। कि न्यू टैक्स regime में यू विल फाइंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका जो टैक्स है वो कम निकल देगा। सो ये गवर्नमेंट की एक तरीके से प्लानिंग है टू शिफ्ट द इंडिविजुअल्स टू द न्यू टैक्स regime। इससे गवर्नमेंट का एडमिन कॉस्ट भी बचता है कि मैं नोटिस भेजूं फिर ए ऑफिसर को लगाऊं कि वो चेक करे सारे डॉक्यूमेंट, राइट। सो और कोई डॉक्यूमेंट चेक करने की जरूरत नहीं, ना कोई डिडक्शन मिल रही, ना कोई एग्जेम्पशन मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। इवेंचुअली यू विल फाइंड दैट मे बी इन इन द नेक्स्ट 2 years ओल्ड टैक्स regime खत्म ही हो जाएगा, ओके। पॉसिबिलिटी है कि ओल्ड टैक्स regime रहे ही ना, बिकॉज गवर्नमेंट इज प्लानिंग देयर बेस्ट कि ओल्ड टैक्स regime से आप न्यू टैक्स regime में जाओ, बिकॉज जो बेनिफिट है वो आपको मैक्सिमम केसेस में आपको न्यू टैक्स regime में दिखता हुआ नजर आएगा, ना कि ओल्ड टैक्स regime, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? यस मैम। कोई और क्वेश्चन है प्लीज मुझे बताइए, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।